Hello, future doctors. This is Ujjwal Kanti Roy, medical mentor, founder and director of the Engineers Gurukul. Today, I'm going to start with a video which is the last video for this topic called breathing and exchange of gases. And the topic today we are going to cover is about the exchange of gases and the respiratory disorders. Now, students, when we talk about exchange of gases, it mainly deals with the exchange of gas. The exchange of gas, what kind of gases are required for our body? It's oxygen and carbon dioxide. It's oxygen and carbon dioxide. So what has to be exchanged? In the exchange zone, the exchange of oxygen from lungs to tissues is required. The exchange of oxygen, so O2 needs to be exchanged from lungs to the tissues through what? Through the arteries. This is RBC and this is O2. O2 needs to get inside RBC where hemoglobin is waiting it to absorb it, bind with and form Hb plus O2 as HbO2. And ultimately, this HbO2 is going to reach up to the tissues to deliver oxygen. Why it is going to deliver oxygen? Because this oxygen is going to help the glucose to get broken down into carbon dioxide, water, and it is going to liberate energy. So this particular oxygen is needed for all the tissues where the glucose are present in the form of glycogen in basically liver and muscles. So exchange of oxygen from lungs to tissues, this is very, very important. Next is what? The next one is exchange of carbon dioxide. So when glucose is being broken down, जब glucose टूट जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनर्जी तो मिलेगा, पर what is unwanted thing? क्या unwanted चीज हमें मिलेगा? वो है कार्बन डाइऑक्साइड. So we need to exchange the carbon dioxide. We need to get rid of this carbon dioxide from tissues to lungs. So that is the most important thing. So carbon dioxide को हमें कहां से कहां पे छोड़ना है? टिश्यू से लंग्स की तरफ छोड़ना है और लंग्स से वो बॉडी से बाहर निकलेगा. So that is the main basic idea about what is exchange of gases all about. और ये होता कौन से प्रोसेस से है, कौन से स्ट्रक्चर से है, ये हमने पहले भी बोल दिया था आपको. We have already talked about this. See, this is alveoli, and the alveoli they have got a very fine, thin-lined squamous epithelium, and then उसके बाहर कौन है? ब्लड वेसल है. ये ब्लड वेसल in blue, blood vessel. Blood vessel is lined by endothelium of the blood vessels. Endothelium of the blood vessels वो भी squamous epithelium से ही बना है. दोनों पतले हैं. Squamous epithelium as well as the endothelium, both of them are epithelial tissues. That means दोनों में common क्या है? Basement membrane. So they are going to form over basement membrane. So ये squamous epithelium है, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा? Basement membrane रहेगा. So squamous epithelium plus basement membrane in the middle plus endothelium of the blood vessel together. साइज कितना है इसका देखो, लेस देन 1 मिलीमीटर. एंड ये एनसीईआरटी का टॉपिक है. सो एनसीईआरटी का टॉपिक है, मतलब ये साइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है. सो ये तीनों मिलाकर the size of the thickness of that these three layers together is even less than 1 millimeter. So इतना पतला है कि easily oxygen can diffuse inside RBC, carbon dioxide can diffuse back inside lungs or alveoli. Is this clear? So this is the basic idea how the respiration occurs, the division of gases occurs. So division का layer समझ में आ गया. अब RBC में रहता क्या है? What is that special thing present inside RBC? RBC में है क्या? हीमोग्लोबिन. ये हीमोग्लोबिन एक्सचेंज ऑफ गैस जानने के लिए हमें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में जानना पड़ेगा. What is हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन में दो वर्ड है, हीम प्लस ग्लोबिन. हीम क्या है? हीम इज आयरन. And what is globin? It's a protein made up of 2 alpha chain and 2 beta chain. ये हम बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़े हैं. We have already studied the same thing in biomolecules because hemoglobin is a quaternary protein structure, if you remember it.
having 2 alpha chain and 2 beta chain. और ये 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, हर एक अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड्स हैं, हर एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड्स हैं. So that makes the hemoglobin is the molecular weight as 59,000 Dalton. 59,000 Dalton. So it's a quaternary structure. Okay. इसमें हमें क्या लाभ क्या है रेस्पिरेशन में इसका? देखो रेस्पिरेशन में हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? In case of hemoglobin, let us talk about the hemoglobin structure. ये hemoglobin में, especially heme में, see there are pyrrole rings present. ऐसा ये pyrrole ring है. These are 4 pyrrole ring present. ऐसे pyrrole ring है, ऐसे pyrrole ring, और ये pyrrole ring के साथ मिडिल में क्या है? मिडिल में है आयरन. So ये pyrrole ring को क्या कह सकते हैं हम? प्रोटोपोर्फायरिन. क्या कह सकते हैं? पायरोल रिंग को क्या कह सकते हैं? चारों पायरोल रिंग को एक साथ हम क्या कह सकते हैं? प्रोटोपोर्फायरिन. वी कैन कॉल देम एज प्रोटोपोर्फायरिन प्लस आयरन मेक्स इट व्हाट? हीम. सो अगर ये हीम है और इस हीम को अगर हम इस फूल की तरह दिखाएंगे, ऐसे फूल की तरह दिखाएंगे, फ्लावर की तरह दिखाएंगे और यहां से लंबा स्टेम की तरह स्ट्रक्चर निकालेंगे, तो वो स्टेम क्या है? व्हाट इज द स्टेम? देखो ये तो हो गया हीम, और हीम के साथ ये लंबा चेन. दिस लंबा चेन इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. दैट मींस दे आर मेड अप ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स. सो मेनी ऑफ द अमीनो एसिड्स मेक्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन. सो ये दोनों को मिलाकर क्या हो गया? यहां से लेकर यहां तक है ग्लोबिन और ये पोर्शन है हीम. सो हीमोग्लोबिन. आई थिंक दिस स्ट्रक्चर इज ओके विद यू. चलो नेक्स्ट. What is this? ये था हीमोग्लोबिन. और इस हीमोग्लोबिन में इस हीमोग्लोबिन में थोड़ा सा और चीज देख लेते हैं. वो है क्लास जो मैंने लिया था आपका आरबीसी वाला जो वीडियो था. अगर आप नहीं देखे हो तो उसको ठीक से देख लो, बिकॉज ये समझने के लिए वो आरबीसी का थोड़ा सा आइडिया चाहिए आपको. ये सोचो एक सेल है. दिस इज अ सेल विच इज कॉल्ड हीमोसाइटोब्लास्ट सेल. कमेंट करो व्हाट इज दिस. फाइन, सी द वीडियो ऑन आरबीसी. हीमोसाइटोब्लास्ट सेल क्या है? ये हीमोसाइटोब्लास्ट सेल है. इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है. ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक जीन है. सो दिस जीन से गिव राइज टू अल्फा जीन. दिस अल्फा जीन ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव. देन देयर इज अनदर जीन व्हिच इज बीटा जीन. देन अनदर जीन व्हिच इज कॉल्ड गामा जीन. लास्ट जीन इज कॉल्ड डेल्टा जीन. और ये फूल जो मैंने बनाया ये है प्रोटोपोर्फायरिन. संग में क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन. सो ये अल्फा जीन अगर एक्टिवेट हो जाता है, this is going to give result to this hemoglobin alpha. So this is alpha chain. So 2 of the alpha chain produced by alpha gene and 2 of the beta chain produced by beta gene. दोनों को लेकर एक साथ कैसा हीमोग्लोबिन बनता है? It is hemoglobin A type. And what is A stands for? A stands for adult. So adult में जो हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है. I think it is okay for you. नाउ अभी ये रह गया क्या? गामा और डेल्टा. और इस गामा और डेल्टा में ऑलवेज क्या रहेगा? अल्फा जीन इज ऑलवेज एक्टिव. सो अल्फा तो रहने वाला है, उसके संग में अगर गामा या डेल्टा रहेगा तो थोड़ा हीमोग्लोबिन का नाम भी चेंज हो जाएगा. सो देखो हीमोग्लोबिन A2 नाम क्या है? हीमोग्लोबिन A2. पहले वाला क्या था? हीमोग्लोबिन A. In this hemoglobin A2 there is 2 alpha chain and 2 delta chain. 2 alpha chain and 2 delta chain together makes hemoglobin A2. और एक है hemoglobin F. What is F stands for? F stands for fetal hemoglobin. And in this fetal hemoglobin there is 2 alpha chain and 2 gamma chain. 2 gamma chain are there in fetal hemoglobin. अब ये तीनों में बीच में कौन था? What is there in the middle? In the middle, what is present? Iron. Iron is present as in the form of ferrous form, Fe+2, but not in ferric
फॉर्म Fe+3 फॉर्म में नहीं है, नहीं रहता है नॉर्मली। फेरस फॉर्म में रहने से ये ज्यादा एक्टिव रहता है एंड इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस। कैसे? अगर ये फेरिक फॉर्म में रहा तो इट डज नॉट बाइंड विद ऑक्सीजन, तो उसको क्या कहते हैं? मेथ हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? मेथ हीमोग्लोबिन। सो फेरस फॉर्म में रहने से ही वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगा, अदरवाइज वो हीमोग्लोबिन हमारे लिए कोई काम का नहीं रहेगा। दैट हीमोग्लोबिन इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू बाइंड विद ऑक्सीजन इन केस ऑफ मेथ हीमोग्लोबिन इफ द आयरन रिमेन्स इन फेरस फॉर्म, सॉरी इन फेरिक फॉर्म। सो नॉर्मली किस फॉर्म में रहता है? फेरस फॉर्म में रहता है। ओके, आई थिंक इट्स ओके विद यू। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। लेट अस गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। सो हीमोग्लोबिन का के समझ में हमें आइडिया मिला। नाउ लेट अस गेट इनटू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सो ऑक्सीजन and carbon dioxide, they are the two gases which are needed to be exchanged. So जानते हैं transport of oxygen from lungs to tissues and carbon dioxide from tissues to lungs, यही तो difference है। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 97% of the oxygen which is transported is in the form is by the help of RBC, is by the help of RBC. 3% of the total amount of oxygen it remains in the form of dissolved state inside plasma. In case of carbon dioxide, ये star mark है, ये information star mark for your NEET examination. Carbon dioxide, 70% of the carbon dioxide is being transported in the form of bicarbonate, HCO3 ion, bicarbonates, and 20-25% of the carbon dioxide is transported in the form of carbaminohemoglobin inside RBC. Inside RBC. Carbaminohemoglobin inside RBC. 7% of the total carbon dioxide is transported in the form of dissolved state. Where? Inside plasma. This piece of information is important for your NEET examination. ये NCERT के एकदम टॉप लाइन में लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का नेक्स्ट पेज में एकदम टॉप में। Now when we talk about 100 milliliter, 100 ml of oxygenated blood, 100 milliliter of oxygenated blood contains 5 ml of oxygen, which needs to be transported to tissues from alveoli. So हर 100 ml oxygenated blood में 5 ml of oxygen transported होता है. If you compare it with carbon dioxide, 100 milliliter of deoxygenated blood में only 4 ml of carbon dioxide is transported from alveoli to alveoli from tissues. So very important event again. 100 ml of blood, oxygenated blood, 5 ml of oxygen transported, but 100 ml of deoxygenated blood, only 4 ml of carbon dioxide is transported. Now when we talk about the rate of diffusion depends upon 3 factors. The first one is about solubility of gases, solubility of gas. The second is about the pressure difference. Pressure difference को डिपेंड करेगा किस तरह से किस रेट में वो ट्रांसपोर्ट होगा, एक्सचेंज होगा. एंड थर्ड इज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन तो हमने समझ लिया, प्रेशर डिफरेंस समझा नहीं वो समझेंगे, सॉल्युबिलिटी समझा नहीं वो भी समझ लेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस. ये तीनों एनसीईआरटी का पॉइंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है. फाइन. सो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिपेंड्स ऑन, ये तीनों ऑप्शन लेकर लास्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दिस. यू कैन ओनली आंसर दिस इफ यू अंडरस्टैंड दैट दिस थ्री फैक्टर्स plays a major role in the diffusion, major role in the diffusion. Okay, now the next topic is about this. Yes, about the solubility. When we talk about the solubility, this is about the solubility. Carbon dioxide is lipid soluble. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बाबू, थोड़ा ठीक से समझ लेना. कार्बन डाइऑक्साइड लिपिड सॉल्युबल है. सो अगर लिपिड सॉल्युबल है, याद है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर. हर एक सेल मेम्ब्रेन में क्या है? बाइलिपिड लेयर है. बाइलिपिड लेयर, रिमेंबर फ्लूइड मोजाइक मॉडल, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन,
intrinsic protein and integral protein. Remember that? Remember this, babu. So ये है bilipid layer, ये polar head, non-polar tail, polar head, non-polar tail of the lipid. Then this is extrinsic protein, this is intrinsic protein, and this is integral protein. Integral protein. Think about it. Carbon dioxide can easily pass through the phospholipid because they are lipid soluble, and so can easily pass through cell membrane from the tissues to blood capillaries directly. Tissue से blood capillary में carbon dioxide can pass through the blood capillaries directly. और यहां पे एक चीज जानना है, और अगर इसके साथ कार्बन ऑक्सीजन का कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा नहीं है जितना कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी है. Now when we talk about partial pressure of oxygen, partial pressure of PeO2 means partial pressure of oxygen. What is the meaning of that? देखो एयर में बहुत सारे गैसेस रहते हैं. The pressure only exerted by the oxygen is called PO2. And what is PCO2? The partial pressure of carbon dioxide. That means the pressure only exerted by the carbon dioxide in that particular air. In that particular air. Now, let us talk about the transport of oxygen first. Transport of oxygen. उसके लिए क्या चाहिए? प्रेशर डिफरेंस चाहिए और सॉल्युबिलिटी चाहिए. सॉल्युबिलिटी तो हमें समझ में आ गया. We got the idea about the solubility. Carbon dioxide is lipid soluble, oxygen is not. When we talk about the pressure difference, ये pressure difference को अच्छी तरह समझना है, because pressure यहां पे याद करना, there is no other way out. क्या? What is there? The partial pressure of PO2, partial pressure of oxygen in atmosphere is 159 millimeter of mercury. तो ये बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है, और हम चाहते हैं ये ऑक्सीजन कहां पे आए? कहां पे आए? टिश्यूज तक आए. कहां पे आए? टिश्यूज तक आए. तो वो तो डायरेक्टली नहीं आ पाएगा. इट हैज टू कम थ्रू द एल्वियोली. सो एल्वियोली में अगर 159 से कम होगा तभी तो वो आ पाएगा, बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ गैस इज गोइंग टू टेक प्लेस फ्रॉम इट हायर प्रेशर टू इट्स लोअर प्रेशर. सो प्रेशर ग्रेडियंट रखना चाहिए. तो देखो यहां पे 159 था बाहर, और अंदर क्या है? एल्वियोली के अंदर 104 मिलीमीटर ऑफ 100 एल्वियोली में 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. और ये एल्वियोली से कहां पे जाएगा? इन द आर्टेरियल ब्लड. व्हाट इज दैट? ऑक्सीडेटेड ब्लड. कितना है? 95. उससे कम नहीं होगा तो वो नहीं पहुंचेगा. सो 104 से फ्रॉम 104 इट इज गोइंग टू मूव टू 95 मिलीमीटर ऑफ Hg. एंड देन फ्रॉम 95 मिलीमीटर ऑफ Hg कहां पे पहुंचेगा? वो टिश्यूज में. टिश्यूज में कितना होना चाहिए? उससे कम 40 मिलीमीटर ऑफ Hg. सो ऑटोमेटिकली ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, तो क्या हो गया? 159, 104, 95, 40. ये आपको याद रखना पड़ेगा. And that is why automatically the partial, due to the pressure gradient, the oxygen can easily come out to the tissues via these many channels. Via these many channels. Via these many channels. Now, when we see the same thing in case of carbon dioxide, when we see the same thing in case of carbon dioxide में देखेंगे तो क्या देखेंगे? देखो कार्बन डाइऑक्साइड में, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड के पहले थोड़ा ये भी देख लेते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके बुक में ये ऐसा फिगर बुक में है, एंड माइंड यू दिस फिगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर. एक्स एक्सिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इन मिलीमीटर ऑफ Hg. वाई एक्सिस में है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. देखो ये हीमोग्लोबिन तो लिमिटेड है. वो कितना है? 14 to 16 ग्राम पर 100 ml of blood. Remember in the very first class we have talked about 100 milliliter of blood. अब ऑक्सीजन के साथ ये हीमोग्लोबिन जितना बाइंड करेगा Hb plus O2 बनेगा. तो ऑक्सीजन सैचुरेशन होना चाहिए ऐसे स्ट्रेट ऊपर जाना चाहिए था. ये सिग्मोइड कर्व ले लिया. इट मेड अ सिग्मोइड कर्व. व्हाई? बिकॉज हीमोग्लोबिन यहां पे जाकर क्या हो गया? कंप्लीटली सैचुरेटेड बाय ऑक्सीजन. क्योंकि हीमोग्लोबिन लिमिटेड है. यहां पे देखो हीमोग्लोबिन लिमिटेड है 14 to 16 ग्राम, बट ऑक्सीजन के साथ यहां पे जाकर ये क्या हो गया? सैचुरेट हो गया, एंड देन इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. जितना भी बढ़ाओगे आप ऑक्सीजन, बट स्टिल दिस कर्व इज गोइंग टू टेक अ राइट टर्न. ये राइट की तरफ मूव करेगा.
Now, Hb, hemoglobin plus oxygen together makes what? HbO2, oxyhemoglobin. What are the factors which are going to help in the formation of HbO2? HbO2 फॉर्म करने के लिए क्या क्या फैक्टर हेल्प करेंगे? फर्स्ट फैक्टर है हाई PO2. अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर बढ़ जाता है, Hb ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा? HbO2 बनाएगा. तो डेफिनेटली अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तभी HbO2 बन के रह जाएगा. इट इज गोइंग टू रिमेन लाइक दैट. इट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन बिकॉज बॉडी में क्या नहीं बढ़ा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा नहीं, तो HbO2 टूटेगा नहीं. HbO2 कब टूटता? जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता. कब बढ़ेगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा आपके बॉडी में. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ा नहीं, तो लो कार्बन डाइऑक्साइड, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू हेल्प HbO2 फॉर्मेशन. लेसर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम रहेगा तो HbO2 फॉर्म में रह जाएगा. ये लेसर H प्लस आयन, अगर बॉडी में लेसर H प्लस आयन रहेगा मतलब हाई pH रहेगा. हाई pH तो लेसर H प्लस आयन रहेगा तो HbO2 फॉर्म करेगा. ना ये सिग्मॉइड कर्व को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. अब ये जो कर्व है, ये कर्व इफ टर्न्स टुवर्ड्स राइट, अगर ये राइट की तरफ टर्न करेगा उसका मतलब क्या है? इस फॉर्म में नहीं है, ये आस्ते आस्ते राइट की तरफ टर्न कर रहा है, मतलब HbO2 टूट रहा है. व्हाट इज गोइंग टू हैपन देन? HbO2 इज गोइंग टू ब्रेक डाउन. HbO2 टूटना स्टार्ट हो गया. सो इन दैट केस क्या कहेंगे? कब होगा वो HbO2? कब टूटेगा? When HbO2 is going to get broken down. HbO2 टूटेगा कब? HbO2 टूटेगा कब? एंड HbO2 टूटना, ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट जाने को क्या कहते हैं? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ये तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है, इसका डिसोसिएशन, टूट जाने को कहते हैं डिसोसिएशन. सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इज गोइंग टू हेल्प इट? ऑपोजिट, हाई H प्लस आयन मतलब लो pH. तो लो pH इज गोइंग टू शिफ्ट कर्व टुवर्ड्स राइट. एंड अगर ये कर्व राइट की तरफ मूव किया, अगर ये कर्व राइट की तरफ टेंड किया, क्या कहेंगे उसको? बोर इफेक्ट. क्या कहेंगे? बोर इफेक्ट. नाउ द सेकेंड कंडीशन इज, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो HbO2 ज्यादा टूटेगा. Hb is going to get broken down into Hb plus O2. जितना ज्यादा ऑक्सीजन बनेगा, ग्लूकोज उतना ज्यादा टूटेगा in presence of oxygen. So glucose is going to get broken down in presence of oxygen into what? Carbon dioxide plus water plus energy. So ये एनर्जी तब मिलेगा बॉडी में, बिकॉज बॉडी में क्या बढ़ गया? बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया. हाई कार्बन डाइऑक्साइड, हाई PCO2. लो PO2, डेफिनेटली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी लेस. अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो ऑपोजिट है. ये बढ़ेगा तो ये घटेगा. एंड हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा बाबू, आप जानते हो आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है. अगर 45 डिग्री सेल्सियस में हम एक्सपीरियंस करें तो क्या होगा? हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा. रेस्पिरेटरी रेट जो कितना है? व्हाट इज द रेस्पिरेटरी रेट? द रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट इज 12 to 16 times. Is 12 to 16 times a minute. ये बढ़ जाएगा आस्ते आस्ते. So these are the factors. Mind you, ये दोनों जो टॉपिक आपको समझाया गया अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. That is, what are the factors which is going to help in the formation of HbO2, and what are the factors which is going to help in breakdown of HbO2, dissociation of oxyhemoglobin into Hb plus O2. ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. आप थोड़ा बुक से देख लेना, यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में है. बट वन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू व्हिच इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी, और वो है द फिफ्थ फैक्टर. वो है 2,3 DPG. व्हाट इज DPG? इट इज डाइफॉस्फोग्लिसरेट. व्हाट इज डाइफॉस्फोग्लिसरेट? आप तो जानते हो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. In Kelvin cycle you have studied about that. In glycolysis you have studied about that. 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट ये कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में बढ़ता है, बनता है. उसमें क्या होगा? इट कंपीट्स विद ऑक्सीजन. ये 2,3 DPG ये ऑक्सीजन के साथ कंपीट करता है. किसके साथ बाइंड करने के लिए? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए. और वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने ऑक्सीजन को देता नहीं है. And it binds with the hemoglobin and stops the oxygen to bind with it. So it happens mainly due to congenital heart disease. What is congenital? Since birth.
So since birth we have talked about this topic, congenital heart disease in heart disorders. थोड़ा देख लेना heart disorders, my earlier video. Very important is the transport of carbon dioxide. So when we talk about the transport of carbon dioxide, have all the patience and put all your attentions on this. See, transport of carbon dioxide. Carbon dioxide transport के लिए सोचो मैं ये systemic circulation दिखा रहा हूं. Systemic circulation means it contains veins and arteries. ये रेड से मैं जो बनाया ये आर्टरी है और आर्टरी और वेन के बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ये तो कैपिलरी होगा, ब्लड कैपिलरी है ये. So I have shown you that like this. Now, in case of arterial blood, the carbon dioxide का total partial pressure कितना है? 40 millimeter of Hg, 40 millimeter of mercury. But in case of vein, the partial pressure of carbon dioxide is 45 millimeter of Hg, mercury. And you see, if you think about the amount of carbon dioxide in the arterial blood, वो कितना है? 48 milliliter per 100 ml of blood. 48 milliliter per 100 ml of blood. क्या ये amount of carbon dioxide in venous in artery blood? But in case of vein बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा. कितना बढ़ गया? 52 ml. मतलब 48 यहां पे था आर्टरी में, वेन में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ गया 4 ml. मैं यही आपको समझा रहा था. With every 100 ml of blood, 4 ml of carbon dioxide is being transported. अभी आपको बोला जा रहा था in the earlier slide we have seen that 100 ml of deoxygenated blood helps in the transport of 4 ml of carbon dioxide. Now when we see the pH in the arterial blood is 7.4, the pH in the venous blood is slightly less, it is 0.04 less than the arterial blood, it is 7.36. So ये क्या हो गया? Slightly acidic हो रहा है venous blood में. And what is the reason? I will tell you that. The partial pressure of oxygen 95 है, 95 millimeter of mercury, but in case of venous blood कितना है? 40 millimeter of mercury. And why it happens again I will tell you. थोड़ा सा देख लो. Arterial blood में definitely oxygen का amount बढ़ेगा, कितना है? 20 milliliter per 100 milliliter of blood. और ये veins में घट गया, कितना हो गया? 15 ml. मतलब earlier video में every 100 milliliter of oxygenated blood helps in the transport of 5 ml of oxygen. See, यहाँ पे 20 ml, तो venous blood में कितना है? 15 ml. So I think this basic idea is okay. Now ये tissues है और tissues ये काम कर रहा है. So tissues जब काम करेगा तो किसको तोड़ेगा? वो ग्लूकोज को तोड़ेगा in presence of oxygen. So it's going to liberate what? It's going to liberate, come on help me, 6 CO2 plus 6 H2O plus again 686 kilocalorie of energy. So ये carbon dioxide tissue में बढ़ गया. This carbon dioxide is going to start getting inside the blood capillaries. कैसे जाएगा blood capillaries से? Because carbon dioxide का solubility ज्यादा है than oxygen. Carbon dioxide is lipid soluble. So through the cell membrane, it can easily pass first inside plasma. Plasma से ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कहां पे? पहुंचेगा कहां पे? Let us make one RBC like this. So ये कार्बन डाइऑक्साइड से आरबीसी में पहुंचा. आरबीसी में ये कार्बन डाइऑक्साइड बांध करेगा किसके साथ? वाटर के साथ. In presence of the enzyme carbonic anhydrase. In presence of the enzyme carbonic anhydrase. बनाएगा क्या? It is going to make H2CO3. It's going to make H2CO3, carbonic acid. Carbonic acid immediately is going to break down into H plus HCO3 minus. ये bicarbonate हो गया. ये bicarbonate ion through special carrier protein is going to come out to the plasma. HCO3 minus bicarbonate ion plasma में चला आएगा और from plasma, this is plasma. From plasma, the Cl minus is going to straight away get inside. And it goes without saying कि क्लोराइड कभी अकेला नहीं रहता है, क्लोराइड के साथ पानी भी जाएगा अंदर. तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनाइड्रेस. ये कार्बोनिक एनाइड्रेस के कारण 5000 टाइम्स बढ़ गया ये कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होना.
और ये क्लोराइड आयन अगर यहां पे घुस गया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द आरबीसी? आरबीसी फूल जाएगा, which we call it as hematocrit, which we call it as hematocrit. तो जब ये आरबीसी यहां पे पहुंचेगा तो आरबीसी क्या हो जाएगा? फूल जाएगा. दैट इज कॉल्ड हेमाटोक्रिट. सो नाउ यू नो क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के समय आरबीसी फूल जाता है. क्यों फूल जाता है? बिकॉज ये जो बैकवर्ड बाहर आ गया फ्रॉम आरबीसी, उसको सफाइज कौन किया? क्लोराइड आयन जाकर. सो क्लोराइड आयन शिफ्ट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट. क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, which is also called as Hamburger phenomenon, which is also called as Hamburger phenomenon. Hamburger phenomenon. So it's again very very important. Okay. Now ये जो H plus बना यहाँ पे, इसका क्या फेट होने वाला है? What is going to happen to this H plus ion? मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा उतना H plus ion बढ़ जाएगा and the body is going to turn acidic. The blood is going to turn acidic. pH लो हो जाएगा. The body is going to turn acidic. वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है. And remember, one of the prime function of hemoglobin, याद है वो हीमोग्लोबिन जिसमें ये हीम है और ये लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन है. इसमें एक एमिनो एसिड है ऐसा जिसका नाम है हिस्टिडीन और ये हिस्टिडीन नेगेटिवली चार्ज्ड है. सो ये नेगेटिवली चार्ज्ड हिस्टिडीन एमिनो एसिड एक्ट्स एज अ प्रोटॉन अटैकर. ये इसको पकड़ लेगा. ये बंदर है, बंदर बहुत झमेला करता है बॉडी में, सो बंदर को पकड़ लिया ये. सो अगर H प्लस आयन को पकड़ लिया हिस्टिडीन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपके बॉडी में बफरिंग काम कर रहा है. इट इज मेंटेनिंग एज एसिड बेस बैलेंस. सो वन ऑफ द प्राइम फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस. और ब्लड में वो कौन सा पोर्शन है? आरबीसी. आरबीसी में वो कौन सा पोर्शन? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में वो कौन सा एमिनो एसिड? हिस्टिडीन. So histidine is going to attack on H plus and reduce what? Reduce the acidic conditions. Okay? So this is acting as a proton attacker. अब ये इस तरह से ये आ गया यहाँ पे. ये so maximum कितना परसेंट? 70% of the carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate. 20 से 25% as carbaminohemoglobin direct carbon dioxide hemoglobin के साथ बाइंड करके carbaminohemoglobin बनाता है and the 7% remains inside plasma. 7% remains inside plasma. This is very very important that we have talked about the transport of carbon dioxide. Just go through your book. If you have got any doubt, you can comment me in the comment section. So that's all about transport of gases. Let us start with the last topic, which is called as respiratory disorders. So when we talk about respiratory disorders, the first disorder is asthma. It is difficulty in breathing due to the inflammation of bronchi and bronchioles. Asthma हम जानते हैं, it is difficulty in breathing and that is due to inflammation of bronchi and bronchioles. Emphysema of lungs. Emphysema of lungs is very important. All those people who smoke cigarette smoking. Alveolar walls are damaged. Decreased surface area. Mainly due to cigarette smoking. Emphysema of lungs. वहां पे क्या होता है लंग्स में? जब डॉक्टर बनोगे, लंग्स ऐसे कुछ आप जार में देखोगे जो ऑलरेडी एम्फाइजीमा ऑफ लंग्स वाले आपके हॉस्पिटल में रखा रहेगा इन जार इन फॉर्मेलिन. और वहां पे आप एक हेल्दी लंग्स एंड और एम्फाइजीमा लंग्स को देखने से आपको समझ में आएगा देयर आर बिलियंस ऑफ पोर्स इन एम्फाइजीमा इन द केस ऑफ एम्फाइजीमा ऑफ लंग्स. तो वो बाहर से दिखेगा बिलियंस ऑफ पोर्स आर देयर, मतलब सरफेस एरिया घट गया इसका. ये सिगरेट स्मोकिंग से होता है एम्फाइजीमा. ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज. कोल माइंस में जो काम करते हैं, देखो हमारे नोज में हेयर्स हैं, हमारे नोज में ब्लड वेसल्स हैं, उसके साथ म्यूकस है. तो अगर कोई पार्टिकल अगर 2 नैनोमीटर से भी छोटा रहता है, हमारे हेयर्स को पकड़ नहीं पाते हैं. नाइदर आवर म्यूकस ट्रैप्स देम. उससे बड़े मॉलिक्यूल बहुत हैं जो नोज में ट्रैप हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ म्यूकस एंड हेयर्स. बट उससे अगर छोटा हो जाएगा, जैसे कोल माइनर्स, जब वो कोल का जो डस्ट है, उस डस्ट से जो डिजीज होता है उनमें, क्योंकि वो कोल डस्ट स्ट्रेट अगर एल्वियोली में जाकर जम जाते हैं. तो अगर एल्वियोली में अगर जम जाएंगे तो क्या होगा बाबू? एक्सचेंज ऑफ गैस पे ट्रबल होगा, एक बैरियर हो जाएगा. तो उससे जो प्रॉब्लम होता है उसका नाम है एंथ्राकोसिस. एंथ्राकोसिस.
बैगासोसिस क्यों कहते हैं? इट इज ऑल्सो एन ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। बैगासोसिस, जो लोग शुगर केन इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, ये बैगासोसिस। शुगर केन इंडस्ट्री में जब वो शुगर केन से जूस निकाला जाता है, वो जो हस्क है उसको काटा जाता है इन स्मॉल पार्टिकल्स। इतने स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं, कभी कभी वो 2 नैनोमीटर से भी कम होते हैं साइज। तो वो कहां पे आ जाएंगे? डायरेक्टली वो आ जाएंगे एल्वियोली में जाकर, उनके शार्प एजेस से वो कट जाएगा एंड इट कैन लीड इनटू कैंसर लेटर। व्हाई? बिकॉज अनट्रीटेड वुंड फॉर लॉन्ग लीड्स इनटू कैंसर। Untreated wound for long can lead into cancer. So Bagasosis is also a type of occupational disorder, and those people who work in sugarcane industries, they suffer from this kind of problem. They suffer from this kind of problem. Fine. The next one is asbestos में, asbestos industry या silicon industry में जो काम करते हैं उनको क्या होता है? They suffer from silicosis. They suffer from silicosis. See, silicosis silicon industry में काम करने से होगा, asbestos industry में काम करने से asbestosis होगा, and ये सब together, all together called as pneumoconiosis. All together is called as pneumoconiosis. Let's come into the topic called regulation of respiration. और ये regulation of respiration ये न्यूरल कंट्रोल से होता है। इट इज डन बाय न्यूरल कंट्रोल। बेनली, मैं पहले भी कहा था आपको, मिडिल ऑफ लॉन्गटा इज द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन एंड पॉन्स वैली इज आल्सो द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। मिडिल ऑफ लॉन्गटा का ये पोर्शन, अगर मिडिल ऑफ लॉन्गटा है, ये ऊपर वाला है डॉर्सल पोर्शन, नीचे वाला है वेंट्रल पोर्शन। द डॉर्सल पोर्शन दे हेल्प इन द इनर्वेट्स इनसाइड EICM, दैट इज व्हाट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स को वो हेल्प करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं। और pons varoli, ये normally we call them as pneumotaxic center and they maintain rhythm, they maintain the respiratory rhythm. यही बात आपको बोला जा रहा था। बाबू, जब हम सोते हैं, right now we can inhale and exhale whenever the amount of oxygen is required, more or less. बट हम सो जाते हैं तब इनवॉलंटरी फंक्शंस होता है और वो रिदम कौन मेंटेन करता है? pons varoli, and especially that center is called pneumotaxic center. एंड दिस न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एक्टिवेट कब होगा? वहां पे हाईली सेंसिटिव एरिया है, जो अगर स्लाइटेस्ट ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जा रहा है बॉडी में, या ज्यादा H+ आयन, अगर ज्यादा H+ आयन बढ़ गया, लो pH हो गया, ऑटोमेटिकली इस रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा बाय द हेल्प ऑफ न्यूमोटॉक्सिक सेंटर. सो दिस इज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ऑटोमेटिकली बाय न्यूरल कंट्रोल. देयर इज सम ऑफ द टर्म्स व्हिच यू मस्ट नो. व्हाट इज कॉल्ड हैल्डेन इफेक्ट? बोर इफेक्ट हम समझ लिए कि HbO2 जितना टूटेगा, HbO2 the graph turns towards right, then we are going to call it as Bohr effect. But what is Haldane effect? Binding of oxygen with hemoglobin, which causes the release of carbon dioxide from blood. अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गया, उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड हैल्डेन इफेक्ट. दैट इज कॉल्ड हैल्डेन इफेक्ट. डिस्पनिया क्या है? डिस मतलब पेनफुल, पेनफुल ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज कॉल्ड डिस्पनिया. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. एस्फाइक्सिया, इट्स क्वाइट ऑफन यू आर गोइंग टू हियर अबाउट दिस. एस्फाइक्सिया मतलब स्टेट ऑफ सफोकेशन ड्यू टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन. अगर आप ऐसे जगह पे पहुंच गए जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज्यादा है, तो आपको हाइपोक्सिया होने वाला है. व्हाट इज हाइपोक्सिया? हाइपो मतलब लेस. सो व्हेन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वहां पे लेस ऑफ ऑक्सीजन होगा, सो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, स्टेट ऑफ सफोकेशन आएगा, उसको कहेंगे एस्फाइक्सिएशन. हाइपोक्सिया क्या है? हाइपो मतलब अगेन लेस, लो ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज इज कॉल्ड हाइपोक्सिया. जब ऑक्सीजन कंटेंट टिश्यू में कम जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको हाइपोक्सिया कहेंगे. बाबू, दैट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एज अ होल टुगेदर. इफ यू गॉट एनी डाउट, अगर कोई डाउट है, you can comment me in my email, and also you can comment me in the comment section in the YouTube channel. Hope you have learned it well. Stay tuned, stay learning, keep on learning, and above all, start solving questions, MCQs. All the very best.